Good afternoon, everyone. My name is Sonia. I'm from Katha. Welcome again, our esteemed panelists. Thank you for taking out time. So, to begin with, I'd like to introduce Katha Utsav Katha to you. Thank you so much, sir, for joining us, Mr. Shiv Kumar Gandhi, Ms. Kiran Tiwari, Ms. Rajni Yadav, Ms. Bharti Lakshmi. It's wonderful to have you all here. So we'll wait for Anamika to join it, but I would love to introduce, it's a pleasure to have you all here at this point in time. And so basically, Katha Utsav 2024 is organized by Katha. So this was a very big opportunity for us to kind of, think through and do a lot of thinking here. And then, actually have these panel discussions and get your esteemed views on some of the very hot burning topics, as we say. So just to give you a background, Katha Utsav 2024 is being organized by Katha, and it is dedicated to enhancing literacy and education through storytelling. The long-standing tradition of fostering young literary talent across India for over 20 years is well known to many. So कथा उत्सव जो है वो 20 साल से चल रहा है यहाँ पे, and so we have been part of it for a very long time. So we have the pleasure to start कथा उत्सव again this time. यहाँ पे बच्चे जो हैं वो लिखते हैं और अपना एक्सप्रेशन करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कहानियों के माध्यम से या नॉन फिक्शन राइटिंग से या पोएम से। और उनमें से ढेर सारे बच्चे आते हैं और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो रीजनल वर्कशॉप में जाएंगे और वहाँ मेंटरिंग होती है। राइटर्स आएंगे, ऑथर्स आएंगे, स्टोरी टेलर्स आएंगे, उनके साथ बैठ के बच्चे सीखेंगे। और so it's more like a learning process than a finale itself, right? So when they do more writing, it's motivational also. जब बच्चे आते हैं बहुत जगहों से और इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत कुछ एक दूसरे के प्रांत के बारे में, कल्चर के बारे में सीखने को भी मिलता है। So that's the whole idea of Katha Utsav. And if we go beyond that, the children who are selected in the regional would then move on to the finals, which is the National Writers Workshop. And that's the Utsav. Utsav is basically the celebration of writing here. So I thought, we all thought at Katha that this is a very relevant topic as of now, to call some of the best people, who have been working with children for so many years and have a discussion with them. So our topic today is children's writing becoming extinct? क्या बच्चे भूल रहे हैं लिखना? And what better than the esteemed panelists? So before we go further and I open the conversation and the dialogue with the panelists, I would like to introduce them. So we have Mr. Shiv Kumar Gandhi with us. He's a practicing artist and a program director at Center of Excellence for Aesthetic Literacy at Piramal Foundation. Welcome, sir. It's such a pleasure to have you here. Thank you, Sonali. Thank you so much. We are looking forward to listening to your thoughts and views on this topic. We have Ms. Seema Sahai with us, who's the founder and chief functionary of Bright Orange Foundation. She has worked for many years in bank, and also she has a huge, lot of things she has been into. So moving on, we have Mr. A.K. Tiwari, who's the executive council member of Salam Balik Trust. Mr. Tiwari, are you there? You're most welcome here, sir. Yes. Oh, yes, sir. Oh, I'm sorry. I didn't see you. Like even online, sometimes we miss out on people. And then, of course, we have Ms. Bharti Lakshmi, Principal, Hindustan International School, Chennai. Amazing set of people here. I open the conversation to you. We also have one more, which is Ms. Kiran Tiwari. I'm sorry I missed out on you.
You are co-founder and CEO of Upkaran Educational Foundation, as I understand it. It's fantastic to meet all of you here at this point in time. I open the platform to you. I would request, I mean, it's nice because the topic is so interesting. What we'll do is each one of you can present your views. And then after that, if there are questions from the audience, people who are listening, please type your questions in the chat box. And then we'll ask once the panelist has stopped, speaking. Over to you, Mr. Shiv Kumar Gandhi. We'll start with you, sir. What are your views? Are children's writing becoming extinct? And why do you think is something like this happening? Yeah, thank you so much, Sonali. Sonia. Sonia. Yeah. So, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मतलब आई एम क्यूरियस कि जो ऑडियंस है उसमें टीचर्स और बच्चे भी होंगे। आई एम अज्यूमिंग कि वो हैं। सो कॉन्वर्सेशन आई एम थिंकिंग कि वो ज़्यादा थियोरेटिकल होगी और या बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट होगा उसके लिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात को कैसे रखूं। अगर आप थोड़ा ये बता पाए कि टीचर्स भी है यहाँ पे, पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। यस सर, टीचर्स हैं, बच्चों का मुझे लगता नहीं है, बट हाँ टीचर्स और पेरेंट्स हैं. And to be honest, I am an educator myself, and I feel a lot of children are struggling with writing in today's time. And बहुत पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं कि हम कैसे प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को लिखने के लिए. और बट उससे पहले मुद्दा ये है, क्या बच्चे नहीं लिखना चाह रहे? So that's a very big, question there. सो अगर इस क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब देना है नहीं. तो बहुत बहुत सिंपल है ये कि मेरा मानना है कि बच्चे लिखना चाहते हैं। हाँ, वो लिखना चाहते हैं, बट इसके लेयर्स बहुत हैं। जब मैं बोलता हूँ कि हाँ लिखना चाहते हैं, हाँ कहानी सुनाना चाहते हैं, नॉट कि सिर्फ लिखना है बट सुनाना है। और अगर सुनाना भी नहीं है तो अपने मन में उसकी कल्पना करना है। तो ये तीन लेयर्स मेरे लिए हैं और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं। जो इसमें मुद्दा जो है कि अगर वो चाहते हैं तो वो कितना हो पा रहा है, विजिबिलिटी उसकी कितनी ज्यादा है, या कितना हम उसके अराउंड देख पा रहे हैं, हमारे पास भी कितना जगहों से वो आवाजें सुनने के हमारे पास सिस्टम भी है या नहीं, डेटा हमारे पास कितना है, वो भी एक मेरे लिए क्वेश्चन है। बट मैं अपनी बहुत एक जेनरिक रिसर्च के बेस पे ये बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा है। इसका रीजन जो है वो जो मुझे लगता है कि दुनिया में अभी तक हम मानते हैं कि जो बड़े खोज हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, लार्जली हम सब लोग मानते हैं और एक के बारे में बोलते हैं कि हाँ पहिए का आविष्कार कभी हुआ था, जिससे दुनिया में अभी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और सारा जो है हमारे आसपास की जिंदगी हम उसके आसपास देख रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है मनी, करेंसी जो हुआ था। तो ये दो चीजों के अराउंड तो हमारी जिंदगी है। बट जो तीसरा मुझे और बहुत से लोगों को लगता है, जो तीसरा सबसे बड़ा आविष्कार था वो था भाषा। और भाषा में भी हम देखें कि कहानी कहानी है, कविता है, उपन्यास है, या जो भी क्रिएटिव इडियम्स इसके अराउंड है वो है। अब जो समस्या है इस पूरे मुद्दे में, मुझे लगता है कि जो तीसरा आविष्कार है कहानी का, उसका जो मैजिक है, सवाल मेरे सामने ये है कि हम क्या वो मैजिक जो है उसका हम लोग, स्पेशली एडल्ट्स और स्पेशली बच्चों की कहानी, बच्चों द्वारा कही जाने वाली कहानी, बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानी, क्या हम इसका मैजिक भूलते जा रहे हैं क्या? तो ये एक बड़ा सवाल मेरे सामने है, एडल्ट एज एन एडल्ट की ये सवाल एक है। क्योंकि ये कहना कि बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं या बच्चे कभी लिखेंगे नहीं, मुझे लगता है कि इसका दूसरा साइड ये है कि जब हम ये कहते हैं कि वो लिखना नहीं चाहते हैं या लिखेंगे नहीं, तो कहानी लिखने के मूल में जो एस्पेक्ट्स हैं, इमेजिनेशन है, हम्म. क्रिएटिविटी है, हम्म. एक्सप्लोरेशन है,
क्वेश्चन करना है। तो ये हम्म, बेसिक स्किल एंड माइंडसेट जो है, अगर हम कहते हैं कि बच्चे नहीं लिखना चाहते, तो हम एक ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि क्या बच्चे अब कल्पनाशील नहीं रहे? क्या बच्चों के इमेजिनेशंस जो हैं तुलना के रूप में पिछली पीढ़ियों से वो क्या कम हो गए हैं? तो मुझे ये थोड़ा सा एक डेंजरस इक्वेशन, को रिलेशन इन चीजों के बीच में लगता है। तो हम्म, rather देन कि क्वेश्चन का जो फ्लिप साइड है, वो मैं अपने आप से और एडल्ट से पूछने, खासतौर से जो लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनसे, कि हम कितनी स्पेसेस जो हैं क्रिएट कर पा रहे हैं जहां हम ये देख पाए कि बच्चे कहानी कैसे कह सकते हैं, कहानी उन्हें क्यों कहनी है। तो प्रॉब्लम का जो सिवियरिटी जो है मेरे लिए इस क्वेश्चन के अराउंड है, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट जो है वो और भी ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि उसमें इश्यूज हैं। इसकी इम्पैक्ट मतलब हम अभी देखेंगे, हम 20 साल बाद, 50 साल भी देखेंगे। क्योंकि करेक्ट, बच्चे अगर कहानी नहीं कहेंगे तो उनकी जिंदगी की बातों को, उनकी कल्पनाओं को, उनकी खुशी को, उनके इमोशंस को, इमोशन जिसमें सुख दुख है, अकेलापन है, बहुत तरह की रेंज उसमें है, तो वो हम कैसे जान पाएंगे? करेक्ट। तो एक तो ये क्या, बड़ा सवाल हमेशा मेरे सामने ये रहता है कि हम वो स्पेसेस जो हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इज अ बर्निंग क्वेश्चन। yeah, so that was my question also. How are we going to create as adults the spaces for these children to write and get motivated to write and tell their stories? I think that's a very relevant question. या सो सोनिया, एज ए इंडियन सोसाइटी हमारी ट्रेडिशन काफी ओरल स्टोरी टेलिंग की रही है। Right, right. जो लोग 50+ हैं, आई एम श्योर उन्होंने कभी दादी नानी की कहानियां घरों में सुनी हैं, अपनी माँ से सुनी हैं, अपने पड़ोस में सुनी हैं। तो वो स्पेसेस हुआ करती थी जहाँ कहानियां होती थी। आई एम नॉट सेइंग कि Mm, वो कंटेंट बहुत अच्छे रहे होंगे, उस पर डिबेट हो सकती है वो mm, कंटेंट क्या थे, correct. क्योंकि वो एक ओरल ट्रेडिशन था। और उससे पहले भी जो हम बोलते हैं कि एक लेगेसी पंचतंत्र की कहानियों की, या Mm, बहुत सारी इस तरह से जो भी ट्रेडिशन थी वो समय था। अब क्या वो स्पेसेस को किन्हीं और टूल्स या मैकेनिज्म ने ओन कर लिया है क्या? क्या वो ऑनलाइन चीजें ज्यादा आ गई हैं, या वो mm, समय जो था बच्चों के साथ हम बिताते थे वो अब समय कहीं चला गया है? तो वो सवाल है उसके अराउंड। सो मतलब इसमें मेरा सोच है कि वो स्पेसेस कैसे क्रिएट होंगी। डेफिनेटली घर उसकी एक जगह है, घर के absolutely. आसपास की Absolutely. जगह है, और Right. दूसरी जगह स्कूल है ना। Mm, मतलब ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे ज्यादातर समय बिताते हैं, घर और उसके आसपास की सराउंडिंग्स और स्कूल। सो मेन जो मुझे लगता है कि वो हमने प्रैक्टिस करना वो छोड़ दिया है, क्योंकि एज ए एडल्ट हमने भी कहानी सुनना सुनाना वो वहाँ स्पेसेस रिड्यूस कर लिए हैं। क्योंकि इसमें जो रूट कॉज जो है, अकॉर्डिंग टू मी, कि कहानी कहना इटसेल्फ वो ईडियम का प्रैक्टिस नहीं है। कहानी कहना अपने इमोशंस, अपना वर्ड व्यू, अपने प्रॉब्लम्स, उनके अराउंड नैरेटिव्स को build करना है. स्टेज करना, उसको डिस्कस करना, वो Correct. सब है। तो वो स्पेसेस Mm, रिड्यूस होंगी, तो एज ए आर्ट फॉर्म कहानी भी रिड्यूस डेफिनेटली होंगी। दैट्स absolutely. द बिगर गैप, बिगर एक स्पेस है। अब मुझे लग रहा है कि वो कैसे हैंडल करना है, दैट्स द Mm. दैट्स द थिंग। क्योंकि So मैंने ये what? देखा कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, हजारों कहानियां उनके मन में होती हैं। वो डे टू डे लाइफ, मंडेन लाइफ हो, उसमें इमेजिनेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। ये होगा, वो होगा, ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों था, पहले तो ये हुआ था, क्वेश्चंस चलते रहते हैं। ब्रेन, हार्ट काम कर रहा है उसके अराउंड। बट Mm, हमारे पास क्या इतना टाइम और हमारे पास वो सिस्टम्स हैं कि हम उनको लेवरेज करें कि हाँ, वहां से कुछ कंस्ट्रक्ट हो सकता है? सो right, दैट्स द right. गैप, और वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। Right. दैट्स द थिंग। So what you're trying to say here is that they are not able to express themselves. Is that in form of written or spoken also? Is it? बच्चे करना चाहते हैं,
But they're बशर्ते हम उनको not सुन getting a playground or a yeah ground yeah to kind of that's that's express that's themselves. the thing that's the thing. Right, right. That's very interesting actually to think about. So what we'll do is there's some people who only understand English. So somewhere I will be Sure, translating, sure. also. So we'll go bilingual as we go forward. All right. And it's fine. I mean, we can speak whatever we are comfortable with, but yes, that's perfectly fine. So how can we inculcate writing habits in children? So what is your take on that? And then we'll move to the next panelist. सो लार्जली हम लोग जो कोशिश करते हैं कि नंबर वन की वो स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे Mhm. स्टोरी राइटिंग स्टोरी टेलिंग और Mhm. लाइफ शेयरिंग इमोशन शेयरिंग जो है पॉसिबल हो. Correct. देन द स्टोरी राइटिंग इज टेक्निकल थिंग कि उसको हमें कुछ तो एक्टिविटी चाहिए कि जहाँ पे कहानी कही जा सकती है कहानी बनाई जा सकती है. तो उन Mhm. स्पेसेस में वो ओपन उन स्पेसेस को करना विद डिफरेंट Mhm. टाइप ऑफ एक्टिविटीज जिसमें कि बच्चे कॉन्फिडेंटली अपना लाइफ जो है वहाँ से वो स्टोरीज जो है वो जनरेट हो. दैट्स द रीजन हम लोग एस्थेटिक लिटरेसी इन दैट अम्ब्रेला लिटरेचर पे जो है हम लोग काम Mhm. कर रहे हैं कि वो Yes. प्रोसेस जो है बच्चे Mhm. एक्सपीरियंस करें कंटिन्यूसली इन क्लासरूम और घर Correct. में Right. Right. वाया डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स कि कहानी मुझे अपनी जिंदगी की कहनी है कहानी हमें लिखनी है. क्योंकि देखिए हमने स्कूल में अब तक क्या एक्सपीरियंस किया जैसे मैं हमारी बात करूं तो हम Mhm. जनरली एक हमारा जो राष्ट्रीय लेख है मतलब मैं उसे नेशनल ऐसे कहता हूँ ऑन गाय पे लेख लिखो. Mhm. दैट्स द फेमस थिंग जो सब पूरे भारत में सभी लोग करते हैं. बट हमारे पास कितने आइडियाज हैं कितने प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं क्या. हम बच्चों की दुनिया की आवाज अगर सुनना चाहते Right. हैं तो किस Right. तरह की प्रॉम्प्ट्स किस तरह की इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस किस तरह की ओपन एनवायरनमेंट इन क्लासरूम और एट होम वो हम Right. कर सकते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा इशू ये है कि बच्चों की अपनी दुनिया की आवाज सुनने में ये एडल्ट्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं है. वो चाहे Yeah. कहानी के फॉर्म में हो या पोएट्री के फॉर्म में हो या Correct. या मे बी रीडिंग Generally. इन जनरल व्हाट्सएप Yes. पे फेसबुक पोस्ट के फॉर्म में. बट वी आर इंटरेस्टेड और नॉट दैट्स द थिंग. And आई and होप do we या and do we have the listening skills? डेफिनेटली Yes, because I डेफिनेटली think या somewhere whenever the children speak, we may not be listening as much as we should be listening to them. राइट राइट वहाँ पे So काफी that's very इमोशनल important. इश्यूज होते हैं जेंडर के अराउंड इश्यूज हैं Absolutely. बच्चों के अपने ड्रीम्स के अराउंड इश्यूज हैं लोनलीनेस है उनका उनकी Mm. फैंटेसीज हैं इमेजिनेशंस हैं. डू वी हैव टाइम और प्रोसेसेस और सिस्टम्स की हम वो नर्चर करें. सो दैट्स द थिंग. Absolutely. Thank you so much, sir. This was such absolutely enriching talk by you. I got to learn a lot. Thank you so much. Anamika, she's there. Sure, sure. Thank you so much. I am glad that, yeah, midway through I could join in and listen to the insights shared by Sir. For those who don't know who Shivkumar Sir is, let me just quickly tell about him. Of course, he's the program director at the Piramal Foundation, and he's leading the operations and aesthetic literacy intervention in Madhya Pradesh, and who's an artist by professional. And he's exhibited his galleries in India as well as abroad. He has keen interest in art education, and the best part is he deals with tribal children, urban as well as rural children. तो अभी जो सर ने बताया those insights are very very helpful to us. Our next panelist is Seema Sahai ji, who is the founder and chief functionary of Bright Orange Foundation. ये स्टेट बैंक में 20 साल तक काम कर चुकी हैं. She has worked with Friends for Women, World Banking and Mobile Crutches for Working Women's Children as COO. इन्होंने माइक्रो फाइनेंस फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव किया हुआ है, रिसर्च की है वहां पे. एंड देन आई थिंक 2015 में शी स्टार्टेड ब्राइट ऑरेंज फाउंडेशन टू क्रिएट एनेबलिंग कंडीशन फॉर अ लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. तो सीमा जी, हमारा जो बचपन था कबीर के दोहे या विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं या आर के नारायण के लेखन से काफी प्रेरित हुआ था. And normally it's said that writing is a great knowledge. Where there is knowledge there is prosperity. तो आप
काफी सारे क्विज प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं टू स्प्रेड नॉलेज, कई आपने प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं जिसमें काफी उत्साहपूर्वक बच्चे शामिल होते हैं। नाउ वी आर कीन टू नो कि आपको क्या लगता है बच्चों में राइटिंग का उत्साह, दैट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, डू वी हैव टू फोर्स देम और डज दैट इंटरेस्ट कम फ्रॉम विद इन, एंड हाउ इज इट that you inspire them? Can you throw some light about this? Over to you, Seema ma'am. Seema Sahai ji, if you can unmute Okay, yourself. muted. So yeah, thank you so much. मेरा ऐसा सोचना है, अनामिका, 2-3 बातें. कहानी लिखना is one part of expression, right? जी. दूसरा मैं ये सोचती हूँ, कहानी, when you're writing a कहानी, ये क्या है? This is a culmination of a thought process. It's not something standing alone कि आज मैं कहानी लिखूंगा, मुझे कुछ दिखा दो, मैं आज कहानी लिखने वाला हूँ. We should encourage that. But वो जो उसके पीछे का जो एक thought process है, that is something that I feel we should focus on. Thought process. And when you're writing, you're just not writing a story as such. You can even have a child can even have, the child has to learn the argumentative thinking about why some things work. You don't always have to write a story about Kamla going to fetch water. You can also write a science fiction. One of my children said, I will make Newton's fourth law. I said, you cannot make Newton's fourth law. You can make Zahid's first law. So children have a range of interest and they can, so more than writing as such, as such, I believe it's the thought process behind that writing which becomes very important. And why we are not writing, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, if I talk about my children, the thing is कि लिखते क्यों नहीं है से ज़्यादा question is, do they even know writing? My children don't know writing. They are 12 years, 13 years, 14 years. They don't know writing. They cannot read a book. So I'm talking about children who are not going to school. ठीक है? There are also children who are going to school, government school. They are seeing the books. If you ask them to read, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये किया था, ऐसे करा था, ऐसे करा था, ध्यानचंद ने, इतने beautifully written chapters are there in their books. Class 5 children. So this is not what I am saying. Government also says, and I am seeing that happening daily, on daily basis. So if you ask them, itna bada chapter, a small paragraph of 8 to 10 lines, they will read, ध्यानचंद ने अपना हॉकी घुमाई और बल्ला बॉल फेंक दी, एकदम सन्नाटा छा गया, फुल खट 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 खट. What is being said, they don't know. So I really feel, number one, our children do not know, most of our children do not know how to write. Even school-going children I'm talking about. They don't know how to write. More importantly, they don't know, they have not been encouraged to have a independent thought process. So I also know a child who was preparing for his school examination, and the examination was about yourself. And you know what he said? He said, listen to me. I have prepared my answer. Listen to me. IMASHUKILIVEINGHADATAGAON. So I live in Ghata Gaon is not something that he could even understand what he's saying, but he had to pass the examination. So, and of course his father was a sweeper. So, and he was going, and father used to bring this big books for him to study. So what I am concerned about, more really I am concerned about, is the lack of thought process. We are not encouraging, we are not saying, Sir said, Shivkumar said, was rightly saying that where are the spaces for imagination? Where are the spaces for logic? So there are absolutely no places for logic. And when you're saying quiz, we try at a very small level to at least have something where that zeal for learning comes. We cannot teach them for life, but at least सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे तो मजा आएगा. बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, you have to see it to believe it. So I think the joy of learning is extremely joy of learning is we talk something. about in Katha.
story or writing as such comes at a very late stage. First, जी the imagination, whether a child is. So we also have children who are 3 years old, 4 years old. You give them one book and they don't know what is written over there, but they will tell you a 5 minute long story. So that imagination is there, but writing will come only when they learn to write, when they learn to write with comprehension. That is it. And I absolutely believe that this is not limited to my children. This is limited to children in general. I Absolutely. many a times feel that my children are maybe financially disadvantaged, yes, but are they really intellectually disadvantaged? No, absolute no. And also, many a times I feel that they are slightly better when it comes to middle class children who don't have to bring 95 marks, who don't have to go modern Kathak dance, evening जी judo class, badminton class. Oh my God, their life is really hell. So even those children are unable to write. You know, when I was preparing for this thought, why children don't write, I just Googled recent Hindi writers. भाई हिंदी राइटर्स दे स्टार्ट विद जयशंकर प्रसाद, मतलब छायावाद की कविताएं चल रही हैं अभी भी लेट हिंदी राइटर्स में. देयर जी आर नो एटलीस्ट इंग्लिश में, सो एटलीस्ट इंडियन राइटर्स देयर आर quite a few who are writing in English. So I'm not making a general statement कि इंडिया को आज़ादी 2014 में मिली. I'm not saying that. Maybe people are writing which I am not aware of. But ये जो मार्केट का सिस्टम हो गया ना, क्लिक बेट कंटेंट राइटिंग, सो आई विल राइट, आई विल गेट मनी, सो आई एम राइटिंग स्मॉल पीसेस. डेप्थ है कि नहीं है, आई जस्ट डोंट केयर. सो बच्चे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू बेटा यू शुड राइट, why don't you write something? No, they will write only when they say that mummy is reading something. What mummy is reading? Mummy is reading the reel contents or the shorts. No, shorts company has earned crores of rupees. Shorts, everything is short, everything is bringing money. Clickbait, where this market is dominating so much. So it's not that children are not writing, they are at the receiving end of a very long chain of the whole system which is not supporting writing. And also, maybe I'm taking too much time, so I don't know how much time I have, but I will say just one more thing, that likhna, we should also give a space instead of writing. कहना, कहानी कहना, story telling. हमारे तो वेद भी जो है सुन के इतने अभी तक चले ही आ रहे हैं. एंड जितने लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, वो लिखे हुए नहीं थे. तो जी एक ये जो ग्लोबलाइजेशन का हो गया ना कि इंग्लिश हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट एट ऑल लोकल लैंग्वेजेस. मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इंग्लिश आती नहीं है. मेरे माँ बाप तो 800 रुपए देकर हर महीने मुझे अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं. मुझे ना राइट अंग्रेजी आती है, ना मुझे हिंदी आती है, ना मुझे बांग्ला आती है जो कि मेरी ओरिजिनल पेरेंटल लैंग्वेज है. तो मैं किस भाषा में सोच के लिखूं? और सब तो चीजें पुश कर दी गई है ना, ऑन अ साइड, ऑन अ मार्जिन. English. You see the list of Indian writers, you will know what I mean. Or राइट every second Indian writer is writing in English. So already by default they are comparatively better placed. पैसे से नहीं better placed होंगे. I don't know about each of yes them, but at least they have a legacy. जहाँ right पे they know how to think and write in English. तो already वो एक privilege में हो गए. तो वो जो local languages की privilege है वो भी चली गई है. And writing is the culmination of a long process of thought. So I right suggest we have to look at it holistically and not in this way. That's what. Totally get your point. And I think you were absolutely bang on when you said कि independent thought process जो है हम लोग we are not encouraging that thought process and हम लोग बच्चों को if you want the zamana has shifted to short everything crisp Short. yes yeah ऐसी headline डालो कि कोई तुरंत yes click करे. absolutely you are right, absolutely. I completely I can't agree more than that with you and I'm sure पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो भी काफी वी नीड टू वर्क ऑन दैट रादर देन बच्चों के लिखाई से के साथ साथ इधर Children reflect the home, children reflect the society. If I'm not writing, means nobody in my home is educated as in educated.
maybe they Right. are fit and earning very well, right? Absolutely. Ma'am, I Thank have a question from you. I mean, before we Yeah, end. yeah. Do you think it's important to read to write? I mean, is this like a follow-up of, I mean, it's important because if you do That not is have the, the yeah. expressions and so are we exposing our children to enough reading? I mean, I Yes, would we are. like to understand that. Yes. I mean, not you as in you, but like Yes, we as yes, all I of understand your us. point. Yes, I understand your point. So you're absolutely right, Sonia. Because so अभी मैं अपना मेरा favorite topic है तो maybe I keep on speaking, but just want to say what my mummy is reading and doing. She is maybe एक educated person है. She is reading a very good book. But are we reading books to our children? Yes, मैं that's the अपने point. बच्चों को तो छोड़ ही दूं अच्छा एंड पता नहीं शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए बट आई गेट सो इरिटेटेड व्हाई विल यू शो मोबाइल टू योर चाइल्ड टू पैसिफाई द चाइल्ड व्हाई विल यू नॉट say a story why don't you tell a story tell no as Right. sir was saying घर वो जगह है जहाँ वो स्पेस मिलता है इमेजिनेशन के लिए but it's not that is Right. so irritating for me to see parents giving phones to their children कि चलो तुम उधर जाओ मैं अपना काम करूंगी या जो भी बात है but that is so destructive for the child and that is where I say ना कि my children are better placed because they are not numbed by mobile phones they are not numbed by video games they are not numbed वो अभी भी जो है ऐसे पहिया घुमाते हुए घूमते हुए चले जाते हैं so I love that life in our children yes reading is very important Sonia reading your reading story to your child is means nothing can beat that importance of that then only you ignite that spark na Yeah, Hmm. absolutely. And I you're think correctly, both of you have correctly said that we are not giving enough spaces, whether no, it's absolutely storytelling or reading or anything. we're not reading to them Yeah, thank yeah. you. Over Thank to you, you. ma'am. Thank you so much. That was really very, indeed very good thoughts. And सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम जब कथा की कहानियों को प्रमोट करते हैं, if you know story pedagogy की जो हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले टडा का सबसे पहला है कि think, ask, discuss, act, achieve. TADAA जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम think बच्चों को सोचने के लिए encourage करो. That's all कथा is all about. टडा story pedagogy is all about that. And you were bang on there. Lovely knowing your thought process, Seema ji. Lovely to have you here. Thank you so much. And now we move to our next panelist, which is Bharti Lakshmi ji. She is the principal of Hindustan International School, Chennai, an educator with passion for theater, music, and reading. She has been in the education industry for over 3 decades now, and she's been in Japan earlier for her professional progress. I think recently also her visit to Tokyo was for academic collaborations with schools for exchange programs. So Bharti ji, you've been in Jamshedpur also, Hyderabad also, Bangalore, Chennai, Delhi as well. और आप urban students के साथ जैसे रोज डील करती हैं तो भारती I mean she has been to Tokyo also for academic collaborations with schools for exchange programs and earlier she was in Jamshedpur then Hyderabad Bangalore Chennai Delhi as well so I was telling that आप urban students के साथ रोज डील करती हैं और आप इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम से भी काफी सुपरिचित हैं आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट की बातें भी सुनी हैं तो आप हमें ये बताएं कि व्हेन इट कम्स टू अर्बन चिल्ड्रन और इंटरनेशनल स्कूल चिल्ड्रन व्हाट इज द सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और क्या विदेशी छात्रों की मतलब लेखन के प्रति दिलचस्पी अभी भी बरकरार है कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस ओवर टू यू भारती जी Thank you, Anamika, for having me over, and I'm very happy to be amidst scholars of this stature. And calling me an educator, I'm really pleased to share a few of my thoughts here. National, international, urban, rural, children are children everywhere. Absolutely. They have the same thought process of deriving joy and giving joy. Now, coming to storytelling, I think, Anamika, it's been I will not say a tradition, a ritual, it's been there with us. कि बच्चे ना हम सब बचपन में नानी से कहानियां मम्मी से कहानियां सुन के ही सोते थे वो हैबिट शायद अभी धीरे धीरे जा रहा है बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट परमिटेड और दे डोंट हैव द स्पेस फॉर मच इमेजिनेशन हम ना आई कंपेयर आवर लाइव्स टू दिस इंस्टेंट कॉफी का एज एब्सोल्युटली सब एक चुटकी में मिल जाना चाहिए बच्चों को
अब Yes. स्टोरी राइटिंग ऐसी चीज है या कहानी बताना ऐसी चीज है कि तुम वक्त लो, इमेजिन करो, एक जी। एक डॉट को दूसरे डॉट से जोड़ो। इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तुम अपने थॉट्स डाल रहे हो, अपने अपनी चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको डाल रहे हो, सब मिला के डाल रहे हो। ना हम बच्चों को उतना वक्त देते हैं, ना हमारे पास उतना वक्त है। Absolutely. I'll give you a small example. बच्चा जब घर आता है स्कूल से, तो शायद माँ बाप नहीं हो, because all of us are busy and I think the environment is such that demands work from all of us. Call it the economic pressure or whatever pressure, I'm keeping it aside. ठीक है, रात को बैठते हैं बात करने के लिए, मम्मी पापा want to give time but they don't have time, so we give money instead of that. But वो 2 या 5 मिनट, अगर 5 से 10 मिनट भी बच्चों को टाइम देना, वो स्कूल की कहानियां जो बताते हैं मम्मी पापा को, वो Right. पूरी कहानी ना सिर्फ स्कूल की नहीं होती है, उसमें उनका मिर्च मसाला भी ऐड होता है। बिल्कुल और ऐड होता है। मिर्च मसाला ऐड करने के लिए हमें वक्त देना चाहिए। राइट, अब जैसे मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं, एज एन एजुकेटर, मेरे पास अगर बच्चे आए बर्थडे का चॉकलेट लेके आते हैं, राइट, आई जस्ट विश देम एंड से बच्चा गॉड ब्लेस यू, जाओ तो वहां से रुकते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू अस सेइंग दैट कि मैम शायद मुझे पूछेगी ये ड्रेस कहाँ से खरीदा, किसने Right. दिलवाया। वो एक कहानी का रूप लेती है। जी, तो हम ना वो छोटी छोटी बातें, वी मस्ट जस्ट एनकरेज देम। मगर वो आदतें जारी, बिकॉज वी जस्ट रनिंग अ फास्ट रेस, हमको सब इंस्टेंटली चाहिए एंड वी जस्ट लुकिंग फॉर इंस्टेंट बेनिफिट्स, इंस्टेंट रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग इंस्टेंट। तो बच्चे आर मिसिंग आउट ऑन दैट, एंड दैट डिफरेंस ओनली वी एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स कैन डू। तो पर्सनली मैं क्या करती हूँ, जो बच्चे जब बर्थडे का चॉकलेट या कोई भी लेके आता है, आई मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड टाइम विद देम, ताकि ये उनके साथ थोड़ी आदत पड़े। एंड आई टेल माय टीचर्स टू डू द सेम थिंग। मैंने कहा डोंट ब्रश अवे द चिल्ड्रन, you can call it inquiry based learning, या कोई भी बड़ा नाम दे दो, but it boils down to only one thing कि you listen, you get more, you talk to them, you gain more. अब एक राइट, छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके बर्थडे ड्रेस के बारे में पूछो। बच्चे कभी कभी आते हैं बताने के लिए कि मैम मेरा पेंसिल घूम गया, आई हैव लॉस्ट माय पेंसिल, आई हैव लॉस्ट माय बुक, देयर विल बी अ स्टोरी बिहाइंड इट एंड द Right. चाइल्ड इज एक्चुअली वेटिंग टू टेल यू। यस, And as I said, the story is not just about the incident. There'll be so many other things, but he'll relate to so many other things. We call it mind mapping. And as I said, we give it big names, but it's basically the child is relating to his environment. He's bringing all the things possible together so that he can convey what he wants to convey. And okay, now we take the instance of an older child. He's dealing with an issue. कुछ भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, भले it may be a fight with his, what do you call, classmate. भले ही ऐसा हो कि शायद his friend today wouldn't have shared अपना lunch box with him, but for a 10 11 I mean for a 10th standard child also it matters कि आज मेरा दोस्त he got my favorite snack and he didn't share with me, and that troubles him quite some time. At the same time, when he doesn't get to choose his subjects for the 11th options, also a little trouble him. So there are two contrasting things troubling him, but he wants to talk it out to somebody who's there to listen. If you are not there right. in a classroom, you're so- conducting a history session. I'm sorry Yes. if I'm interrupting you, but do you think if you encourage a child by, giving him some space and time and you wish him for the birthday, listen to his or her story a little, writing encourage hoga? Would they want to write their story? होगा, Anamika, because all of us language students, I think most of us know, हम लोग सब भाषा प्रिय है यहाँ पर। जी, हमारी कहानियां कैसे शुरू हुई थी, because at some point हम लोग लिखना चाहते थे उसको, yes, मगर जब तक हमें बोलने का मौका नहीं दिया था, हम लिखते कहाँ से? you're right. At some point में इन बच्चों को भी वो आदत पड़ जाए कि हम इतना बोल रहे हैं, शायद लिख के देखें। We call it journaling, we call it making anecdotal records. मैंने कहा fancy terms है हमारे पास, journaling बोलो, anecdotal records बोलो, poetry बोलो, short essays बोलो, और give it a fancy name तो और भी मजा आएगा बच्चों को। And beyond, and when they are small, encourage them to speak. जैसे जैसे बड़े होंगे, encourage them to express. And certain things, ऐसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो लिख के दिखाते हैं। Right, right. Those replies can be in your essays, can be in your articles, sometimes even in your literature answers. Because when the children grow older, they start relating to the stories in fiction or the stories in lessons. Why? Sometimes even in the movies that they watch. Right. Today it's become sedentary because they're only taking. Now, for example, in my age, probably if I went to watch a movie or a series or whatever, I would love to discuss. Even today, probably if I watch a Family Man or it could be any web series or something, I would love to come and discuss the characters की एक character ऐसा क्यों उभरा, Yeah. उसके पीछे क्या था। मैं बच्चों को थोड़ा सा वो वक्त देके, थोड़ा सा लेसन से deviate करके, if I'm able to give that time,
believe me, writing will not disappear from this world. I think The that's other day I was talking to my children. मैंने कहा बच्चे, it's a very evolving, progressive society we are in. जो education जी. पहले था, it's not there, but what has remained is you children are children, we teachers are teachers. We will always remain the same. ये Google आएगा जाएगा, ChatGPT आएगा जाएगा, but it is your mind, it is your words which will remain forever. So don't lose out on that. तुम जो लिख रहे हो mistakes के साथ, we will enjoy it. But remember, examination point of view, तो you will lose your marks because you will feel lost. कि मेरे पास अच्छा. ChatGPT नहीं है, मेरे पास Google नहीं, मैं किसका सहारा लूं? तो अभी से उनके बिना जीने की आदत डालो. And Right. तुम जो भी express कर रहे हो दिल से, we are encouraging, we are welcoming you with that. So why do you hesitate to express yourself? But again, as teachers and parents, वो वक्त निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. ऐसे teachers बोलते हैं, मैम मेरे पास time नहीं, मैंने कहा बनाओ फिर. When you don't have time, you create it. Simple. Yeah. You organize yourself in such a way that you just have to give a listening mind to the children. The writing will Right. not disappear, the speaking will not disappear, nothing will disappear. 24 hours is good enough time for us to create that time for the kids to let their imagination run. Right. And we Ab- teachers in our lessons, हम syllabus से हटके हैं, portion से हटके, मैंने कहा teachers थोड़ा हटके निकलो वहां से. Make it more realistic. Make it जी. more real life. And children will enjoy your lessons and they will never forget you as a teacher. So writing will not disappear as long as we are here and as long as we allow them to speak. And as long as we listen to them, writing can never disappear. So you think And once we tell the children, sorry. So you strongly think Sorry, that Anamika. something, I am sorry, I'm just saying this. You strongly feel that if we, as parents, teachers, as elders, if we encourage बच्चों में लिखने की, क्षमता या उत्सुकता, excitement बढ़ेगा. You strongly feel that? बिल्कुल जिंदा रहेगा. Of course, it will remain. But the encouragement की भले ही बच्चा 2 sentence लिखे. One part की बच्चा, you're doing great. Write 2 more sentences tomorrow. That bit of encouragement and a bit of fact in the beginning years. Later, you have to become critical. The child, maybe if you could use a little more vocabulary, this could probably make more sense. Probably if you could use these words instead of that, it will get more poetic. Right. And Right. make them show examples of, the writers and poets that we've had and their lives that they lived. So you got to make it exciting. And only we parents and teachers can do it, nobody else. फैंटास्टिक. एक्चुअली भारती जी, आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि हमारे स्कूल की टीचर्स ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था. मुझे यदि आप मेरे कॉलेज के लेक्चरर्स के नाम पूछेंगे तो शायद आई मे नॉट रिमेंबर, बट इफ यू आस्क मी माय स्कूल टीचर्स ने, मुझे आज भी याद है द वे दे वोर देयर साड़ीज, द वे दे पुट द क्लिप, या द वे दे टोल्ड कि अनामिका बहुत अच्छा लिखा है. Then I would get super excited and then I wanted to write. मैं स्कूल में पोएट्री लिख देती थी, बट ओवर द इयर्स वो आदत चली ही गई बिकॉज शायद किसी ने encourage उसके बाद किया नहीं. So you are very दिया नहीं किसी ने. And Anamika, one more point, because you said teachers, I tell my teachers, मैंने कहा teachers don't become technology dependent. Right. We grew with teachers who made poetry come alive, who made science come alive. उसमें ना एक blackboard हुआ करता था बस, और एक book हुआ करता था. Teachers, by the way they spoke, with their gestures, with the animation, brought everything alive in front of us. मैंने कहा ये smart board भी चला जाएगा, एक दिन TV भी चला जाएगा, हम ही लोग बचे रहेंगे. So why are you losing out on your creativity, your spontaneity? And don't be technology dependent, because it's going, but you and me will remain. So whether it is poetry or science, make it alive, come alive through your gestures, through your eyes, through your emotions, and you are bang on with the kids, and the kids are yours forever. Because if you see, Anamika, we remember our teachers not because they were only a book. Yeah. They only had a book, but the way they connected with us. Yes. Not the direct connection. हमारे बीच में कोई नहीं था. There was no smart board, no TV, no system, no AI, nothing. That's why it's called artificial intelligence. Everything was natural. Yes. It was a heart-to-heart connect, and that's why we remember them well. True. Very true. Technology को लो accessory है, support है, उस पे ना completely depend मत हो जाओ. Completely agree with you, and I think आपने जो points बोले कि बच्चों की creativity हो या curiosity हो, everything, in fact जो C9 skills जो promote किए जाते हैं, everything can come under once we encourage the children. थोड़ा समय देना बहुत important है, be it teachers, parents, elders or anything. Thank you so much for sparing your precious time, Bharti ji. It was really wonderful to have you here. My privilege, and thank you. And you'll have to please allow me to leave the session, because I have my children waiting for me. The school is waiting. So
To all the parents, teachers, and my co-panel members, thank you for this opportunity. I look forward to further more discussions on this, and make sure the writing and imagination doesn't disappear from this world. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Wonderful having you here. And अब हम चलते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ जो हैं अंजनी कुमार तिवारी जी. He is the executive member of Salam Balak Trust, an alumnus of Banaras Hindu University. Tiwari ji has a master's degree in social work. He has been in SBT for over 26 years. And he's a favorite among children for his care and constant support. वैसे तो हमने राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में सुना है, but SBT के पिता इनको माना जाता है. I mean, that's how everyone looks up to him. He's a father figure for them. And he's an expert in project implementation. He enjoys advocating the rights of children at various forums. He also carries the banner of SBT's arts program. So, इसके अलावा मैं आज खासकर आज के प्लेटफॉर्म में अंजनी सर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि एसबीटी की जो टीचर्स हैं इन्होंने कथा की कहानियों का इतना सुंदर क्लासरूम में यूज किया है. दे यूज द पोर्टल सो वेल, यूज करते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के, वो कहानियों को जो बच्चे यूज करते हैं लेसन्स के लिए. It is so beautifully shared by these teachers that I wanted to specially thank you कि I'm sure it's your hand behind them. आप उनको काफी encourage करते हैं पोर्टल यूज करने के लिए. तो एक स्पेशल थैंक्स तिवारी जी for a special shout out to you on this platform today. Thank you so much for that. And आपके सारे facilitators को हम सलाम करते हैं. And coming to the topic now, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है ये तो हमने सुना है और शायद इसीलिए you have ensured that the children of SBT maintain a diary. तो अब आप हमें ये बताएं सर कि क्या बच्चों से डायरी में लिखवाना मतलब was it easy, आसान था? क्या उन लोग मतलब निरंतर बिना कोई रुकावट के लिखने में दिलचस्पी लेते हैं? क्या क्रिएटिव राइटिंग भी करते हैं? हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर और हमें इसके बारे में बताएं. ओवर टू यू तिवारी सर. Thank you, Anamika ji. Thank you so much for this opportunity. I am really happy to discuss about this issue. जी. Actually, I am a social worker. So I will present my theme as a social worker, not as a expert. तो जी. जैसा मैं समझता हूँ कि बच्चों में लिखने की अभी भी इच्छा है और वो होगी, लेकिन जिस तरह से हमारा पूरा सोसाइटी जिस तरह से चल रहा है और बच्चों को गाइड करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है. एक जमाना था जब ज्वाइंट फैमिली होती थी और वहां पे इस तरह की स्टोरी और वो ना हो करके जो घर में जो बड़े लोग होते थे, जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा दादी, उनके द्वारा बच्चों को सुनाया जाता था, जो कि वो और उससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती थी और उनके साथ टाइम बिताया. लेकिन आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं, तो बच्चे जो है ज्यादातर अपना क्रिएटिविटी छोड़ करके टीवी, मोबाइल या और चीजों में, और दूसरा जो स्कूलों का सिलेबस है वो इस ढंग का है कि मैक्सिमम टाइम उनका होमवर्क और इस तरह की चीजों में लगा रहता है. और माँ बाप भी इस तरह के क्रिएटिव राइटिंग और इस तरह की चीजों को कभी प्रोत्साहित नहीं देते. उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चे तो उनको जैसा गाइड किया जाएगा वैसे ही करेंगे. लेकिन चूंकि इस तरह का किसी के पास टाइम नहीं है और वो चाहते हैं कि केवल ट्यूशन के थ्रू इंगेज करके रखें, और आजकल वर्किंग मदर फादर हैं तो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ये जो स्टोरी की जो राइटिंग की जो है क्रिएटिविटी की जो है ये मुश्किल होता जा रहा है और लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कर रहे हैं और इसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल है. लेकिन कथा का ये इनिशिएटिव, कथा उत्सव और जो स्टोरी टेलिंग है ऐप, इसके माध्यम से हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसकी तरह जुड़े हैं. और एक बच्चे ने अभी 1 साल पहले जब शुरू हुआ था तो एक स्टोरी किसी बुक में छपी थी, उसने अपने बारे में, अपना स्ट्रगल के बारे में और बहुत सुंदर ढंग से उसने लिखा था और वो पब्लिश भी हुई. जी. तो मेनली जो है जो पूरा डायनामिक्स है, जो सोशल डायनामिक्स है, वो
इस पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को किस तरफ ले जा रहे हैं। जी मेनली जी मेरा जो थॉट है यही है, बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह का सोशल मीडिया और जो नई नई चीजें आ रही है उसमें बच्चे ज्यादा इंगेज हैं और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि उनको ठीक से गाइड कर पाए और सोचे कि क्या है। ज्यादातर पेरेंट्स भी मैथ और साइंस के बारे में ही सोचते हैं कि बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा करें, कुछ क्रिएटिव करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। जी, जी। सर मैं आपसे ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जब सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे अभी डायरी लिखना शुरू किए हैं, क्या लिखते हैं ये डायरी में? आप क्या लिखने के लिए इनको एनकरेज करते हैं? जो टीचर है वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे हमारे पास से जो लेकिन मैंने एक बच्चे की डायरी देखी थी, जी, तो जी, उसने उसने कुछ अपनी सोच से कुछ स्टोरी लिखी थी और उसमें एक डॉग के बारे में लिखा था और उसका जी, पिक्चर भी बनाया हुआ था। जी, तो कि डॉग है, फिर उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से लिखी कि उसके साथ हमको कितना अच्छा लगता है। ओके, तो जी, बच्चों का चूंकि डॉग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने ये देखा है कि उनका एक अलग रिलेशन जी। होता है। तो यही कि बाकी ज्यादा टीचर बता पाएंगे, लेकिन मैंने केवल एक बच्चे की डायरी में मैंने देखा था। बहुत सुंदर, उससे पता चल जाता है कि हाँ मतलब हाँ बच्चे उन अपने दोस्त के बारे में लिखना चाहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही सॉलिड लिटरेचर का कोई टॉपिक हो। बहुत ही सिंपल-सिंपल चीज़ों के बारे में लिख पाना ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और बच्चे बहुत आसानी से यदि मुझे आप बोले एक एक कुत्ते के ऊपर एक कहानी लिखो तो शायद मैं 2 लाइन से ज़्यादा ना लिख पाऊँ। बट यदि बच्चा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है मतलब कितना क्रिएटिव है। तो हाँ ये C9 स्किल्स में हम जैसे बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब एनकरेज करना चाहिए। तो ये इनकी लिखाई में जो होती है दिखाई देती है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया और आप क्योंकि बच्चों को वहाँ पे एनकरेज भी कर रहे हैं लिखने के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ ज़रूरत है आज की कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि उन लोग लिखें, कलम उठाएँ ना कि कंप्यूटर के कीबोर्ड या मोबाइल के टैब को यूज़ करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा है कि उन लोग कलम उठा के कुछ लिख रहे हैं। क्रिएटिविटी को हम मुझे मेरे बचपन में मतलब मुझे कर्सिव राइटिंग लिखना इतनी देर तक कौन लिखेगा कि मुझे पसंद नहीं आता था। तो मुझे फुसला-फुसला के मतलब माँ बोलती थी कि जब तुम लिखोगी तुम्हारे हाथ के नर्व्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। कुछ-कुछ फैक्ट्स होते थे, कुछ-कुछ अभी जैसे भारती जी बता रही थी मिर्च मसाला भी ऐड करके देखना और मम्मी मुझे बुद्धू बनाती थी कि तुम बहुत सुंदर लगोगी, तुम ये करोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। और मैं हर चीज़ मतलब कुछ भी मतलब पेरेंट्स जो हैं ना हमको मना के वो करके लिखवाते थे। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करने से ना दिलचस्पी आ जाती है। कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड आपने बहुत ही खूब बताया कि बच्चे ने डॉग के ऊपर मतलब अपने दोस्त के ऊपर उसने एक लिखाई लिखी है। बहुत अच्छा लगा सर आपके मुझे पॉइंट अभी सुन दो तीन लाइन उसकी याद आ रही है मुझे अभी, थोड़ा और डीप में मैं गया कि वो लिखा था कि ये मेरा अच्छा दोस्त है और इसको जो मैं जो कहता हूँ वो करता है जी, और मेरे साथ हर वक्त रहता है। वाह! हाँ, जो मैंने सबसे बड़ी बात तो ये उसने लिखा कि जो मैं कहता हूँ वो, और जब मैं कभी उदास होता हूँ तो मेरे को खुश करने की कोशिश करता है। करता है। सो नाइस एब्सोल्युटली। सर यदि हम ध्यान दें तो बच्चा एक तो ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। कुत्ता उसकी बात सुन रहा है मतलब ही वांट्स समबडी टू लिसन टू हिम और कुत्ता उसका लिसनर है। तो ही इज़ दैट्स व्हाई फीलिंग हैप्पी कि उसका लिसनर और वफादार है, उसके साथ है, मेरे साथ रहता है करके। ये 2 पॉइंट्स में काफ़ी डेप्थ है एक्चुअली कि वो चाहते हैं कि कोई उनका कंपेनियन बने एंड द डॉग इज़ हिज कंपेनियन। वेरी लवली टॉकिंग टू यू सर। आपके जो पॉइंट्स थे बहुत ही अच्छे लगे एंड जब भी मैं आपसे बात करती हूँ मैं बहुत ही आई आई गेट वेरी एक्साइटेड एंड मुझे खुद एनकरेजमेंट मिलती है एंड आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो लिए हैं सलाम वाला ट्रस्ट के लिए एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू यू फॉर ऑल दोस इनिशिएटिव्स एंड आई एम वेरी श्योर कि कथा उत्सव के लिए भी आप अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे एंड ज़रूर उनको इसमें शामिल कराएंगे। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम टुडे। आई नो हम लोग थोड़े टाइम से अधिक आगे निकल गए हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द delay, but I'm very happy that you could join in. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Lovely having you. And last but certainly not the least, हमारी पैनलिस्ट हैं किरण तिवारी जी. ये co-founder and COO उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन की हैं. इन्होंने MBA फाइनेंस में किया है, and then she's worked with some very prestigious organizations like Tata Trust, Azim Premji Foundation, Prayas, Pratyek and Hands magazine. Her articles have got published in ashtak.com and in Language and Library in Amar Ujala as well. Well, ma'am, it is said that writing gives wings to thoughts. तो आपने इस कहावत को सचमुच सार्थक किया है. आप ये बताएं कि आपने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे बाल अखबार हुआ या झोला पुस्तकालय या रिश्तेदार को पत्र, बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं. तो इसके पीछे क्या विचार था और क्या ये लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं? We would love to hear from you, and once again I apologize for all the delay. Kiran Tiwari ma'am, over to you. थैंक यू अनामिका जी. दरअसल मैं अभी सबको सुन रही थी, सारे पैनलिस्ट को, तो बहुत सारे इस तरह की चीजें आ रही थी कि कैसे बच्चों को एक स्पेस देना चाहिए, वो मौके मिलने चाहिए. जब आपने इस इनिशिएटिव की बात की कि बाल अखबार है, झोला पुस्तकालय है, तो झोला पुस्तकालय एक हमारा कॉन्सेप्ट है जहाँ हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. और क्योंकि हमारे पास ऐसा लाइब्रेरी के कोई ऐसी जगह नहीं है, तो हम किसी के घर के सामने हमने किताबों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया और बच्चों को पढ़ने के लिए एक इतनी सारी किताबें मुहैया कराई. बच्चे एक रीडर के तौर पे निकल के आए. तो वो एक इनिशिएटिव है. बाल अखबार की जब बात आई तो मैं एक्चुअली लेके बैठी हुई हूँ. कल ही परसों नरसों मेरे टीम मेंबर्स लेके आए. स्कूल में वो बच्चों के साथ काम करती हैं, तो उन्होंने ये पूरा एक बाल अखबार निकलवाया भी, बच्चों से बनवाया है. Wonderful. इसमें बच्चे लिखते हैं और ये दरअसल उनका हफ्ते में एक बार बच्चे बाल अखबार पे काम करते हैं. तो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि बच्चों ने देश का समाचार, गांव का समाचार, जैसे चुटकुले रखे हैं, आस पड़ोस की खबर है, बड़ा हादसा टला. तो बच्चों ने ना काफी इसमें चीजें रखी हैं जो अखबारों में उनको लगता है कि शामिल होती हैं. तो जब हम यहाँ राइटिंग की बात कर रहे हैं कि मुद्दा भी है कि भाई बच्चों से राइटिंग कहीं छूट रही है, विलुप्त हो रही है, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हो रही है. क्योंकि हम वहां जा ही नहीं रहे हैं बच्चों के पास में. अब हर बच्चा, राइटिंग ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. वो तो एक भाव है. हम बड़े सोचते हैं कि हमारा ही भाव है, हम ही लिख के या अपनी बातें कह के निकाल देंगे. पर बच्चे कहीं ना कहीं किसी माध्यम से तो वो व्यक्त करना चाहते हैं. तो वो राइटिंग को, मैं जो बच्चे चित्र बनाते हैं, हम कई बार बच्चों के साथ जब कहानियों पे बात करते हैं, हमने कथा से बहुत सारी आप लोगों ने किताबें दी है तो हम वो भी यूज करते हैं. तो जब हम कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे लिखना, उसको कखा गघा और उसको स्क्रिप्ट लिखना उसने सीख लिया है तो वो लिख लेगा. हम उसको, अगर कक्षा 1-2 के बच्चे जिनको भी लिखना नहीं आता, हम उनको कहानियों पे चित्र बनाने के लिए भी मोटिवेट करते हैं. और कई बार खुद से भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप चित्र के माध्यम से, लिखने के माध्यम से आप जैसे भी कर सकते हैं. तो हमारे बच्चे वो लिखते हैं, चित्र बनाते हैं. तो मैं लिखने को सिर्फ जो हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, उससे ही नहीं देखती बच्चों की राइटिंग को. बच्चा क्या बना रहा है, आड़ी तिरछी रेखाओं से भी उसने कुछ ना कुछ व्यक्त करने की कोशिश की है. तो हम लोग उसको देखते हैं और कहीं ना कहीं उसमें बच्चे की फिर बहुत सारी बातें निकल के आती है. तो लिखने का तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी लगता है. और मैं क्योंकि खुद बच्चों के साथ काम की हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, तो कई बार होता था कि कैसे बच्चे लिखेंगे, बच्चे तो लिखना ही नहीं चाहते हैं. मतलब क्यों नहीं लिखना चाहते, हम उनको स्पेस कैसे दे रहे हैं. जी. अभी पहले आई थिंक सोनिया जी ने एक बात कही थी कि पढ़ने को लिखने से उन्होंने जोड़ा था. तो मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये. क्योंकि जब हम ना जितना पढ़ते हैं, जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्त करना चाहता है, उसके कुछ ना कुछ वहां पे पढ़ने को लेके उसके अंदर भाव रहता है. तो हम लोग, जब हमारा भी स्टोरी टेलिंग पेडागोजी है, तो जब हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं कहानियों पे, तो हम उसमें ना कई तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं कि बच्चे थोड़ा सा उस क्वेश्चन के बारे में सोचे. ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं. थोड़ा बच्चे कैसे अपने अनुभवों से, अनुमानों से, तर्कों से मतलब उसको जवाब देंगे उन कहानियों पे आकर के.
तो हम लोगों ने देखा कि उससे ना हमें बहुत मतलब फायदा मिला कि बच्चे एक तो बोलना एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्लासरूम में या घर में भी बच्चे के लिए, तो वो वहां पे हुआ। जब लिखने का आया तो हम लोग ना उनको छोटे छोटे चीजों से जोड़ते हैं। जैसे बच्चे अपने प्रिय लेखक को जो कहानी पसंद आई उसको पत्र लिखते हैं। एक बच्चे ने, कक्षा 4 की बच्ची है निशा, उसने जी एक चिट्ठी लिखी है अपने लेखक को। जी उसने कहानी जब पढ़ी हरियाली की रानी तो उसे बहुत अच्छी लगी। और क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो कहानी उसके अपने कॉन्टेक्स्ट से बहुत जुड़ी लगी, उसमें फसलों की बात की गई है। तो उसने लिखा है कि आपकी लिखी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी किताब। इस कहानी में सब कुछ फसल पर टिका होता है, लेकिन बारिश ना होने से फसल नहीं होती और जीतू भी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे एक भी सामान पसंद का नहीं मिलता। इसमें स्कूल को बारिश लाने की राह दिखाई, वो परी से मिली। अब मेरा भी मन करता है कि मैं भी परी से मिलकर बातें करूं और अपनी इच्छा बताऊं। इतनी अच्छी कहानी लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशा ने जो इसमें लिखा है वो उसका अपना भाव है। जी जी लिखना है, उसको कहानी पसंद आई। तो वो जो बच्चों को एक छोटे छोटे जगहों पे लेके जाना, छोटी छोटी बातों के साथ उनको जोड़ना। मैं अभी देख रही थी, अभी मेरी टीममेट लेके आई थी कि उन्होंने भी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी 15 अगस्त बीता, तो उसपे भी बच्चों ने इतना अच्छा लिखा है। राइट। हम वो मौके कहाँ उनको दे रहे हैं? तो मुझे सो लगता है कि आई एम सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चे लिखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस को के लिए हम लोग उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से नाउ। किरण मैम, आई वुड जस्ट वांट टू आस्क यू, बाय चांस आप उनको encourage करना बंद कर दें और बिल्कुल encourage ना करें, तो आपको लगता है फिर भी बच्चे अपने आप दिलचस्पी लेके लिखना चाहेंगे? क्या इसमें बड़ों का हाथ है कि वी हैव टू एनकरेज? बड़ों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड एनकरेज देम टू राइट? आपको क्या लगता है? जी अनामिका जी, तो मुझे लगता है कि लिखना चाहते हैं, बिल्कुल चाहेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं बच्चों के साथ भी काम की हूँ और मेरा भी 4.5 साल का एक बेटा है। जी तो मैं उसके साथ भी जब काम करती हूँ, मतलब काम क्या, मैं उसको जब कोई कहानी कविता, तो अभी उसने एक सुशील शुक्ल जी की कविता है आधा पादा करके, ठीक है, वो पढ़ता, उसको वो कविता इतनी मजेदार लगी कि वो उसमें उसने उस कविता को पढ़ा। उसमें ऐसे है कि ऊंट चलते चलते पादे, घोड़ा बैठ के पादे, ऐसे कुछ पूरी कविता है। हाँ हाँ हाँ। उसने सारे लोगों को उसमें जोड़ दिया। हमारे यहाँ जो खाना बनाती है ममता, उनको की रोटी बनाते बनाते, तो उसने कहा मम्मी सुशील जी ने तो लिख दिया है, ये मेरी कविता है, इसको आप लिख दो। तो एक्सटेंड यानी कर कि दिया। हाँ हाँ, सारे बच्चों में वो भाव है कि उसको लिखना नहीं आता, यानी कि वो बच्चा चाह रहा है कि वो जो बोल रहा है उसको लिखा होना चाहिए। तो वो एक छोटे बच्चे का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत बच्चों को देखा। हमारे यहाँ बच्चे इसलिए लिखना बंद कर देते हैं ना कि हम लोग कई बार क्लासरूम में मतलब बहुत सारे टीचर्स नाराज भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से, पर हम जब ना बच्चों की लिखावट को काट देते हैं, उसमें लाल पेन से मार्क कर देते हैं, जी। वहीं से ना एक शुरुआत हो जाती है उसको खत्म करने की। लिखना डिस्करेजमेंट। तो चाहते ही है, चित्र बनाते हैं तो लिख ही रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। ये हम बड़ों की एक आदत है उनको रोकने टोकने की, कि वहां पे वो रुक जाते हैं और वहां से मोटिवेशन नीचे गिरने लगता है। तो मुझे लगता है कि लिखना तो बहुत चाहते हैं, और मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं मेरे बच्चों के। जी क्लासरूम से लेके मेरे आसपास के जो परिवेश में बच्चे हैं, सब लिखना चाहते हैं। बच्चे हमारे पास स्टोरीज लिख के भेजते हैं कि हम इसको कहाँ छपवा सकते हैं। हमने कहा खूब लिखो, पहले लिखो, छपवाओ बाद में, पहले लिखो, जितना मजा आ रहा है लिखो। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपने जो पॉइंट्स जो सामने लाई हैं और आपने जो दिखाए हैं, आई नो वेरी वेल कि आप इंकरेज करती हैं बच्चों को लिखने के लिए, बट आपने जो कविताएं पढ़ी हैं, उनकी उनकी लेख पढ़ी हैं दैट दे वांट टू राइट, और अपने खुद के बच्चे का जो आपने एग्जांपल दिया कि दे वांट टू एक्सटेंड, वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल वे है कि हम इंकरेज करें तो बच्चे जरूर लिखेंगे, और उनको अपने आप भी लिखने की दिलचस्पी है। कहीं ना कहीं we need to just allow them to spread themselves. I think that was a beautiful point that you covered up, ma'am. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. However,
एक चीज आज के डिस्कशन में जो सीमा सहाय जी या किरण तिवारी जी, शिव कुमार सर, AK तिवारी सर, भारती लक्ष्मी जी से डिस्कस करने के बाद ये जरूर पता चला है कि वेरी एविडेंट कि राइटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है. There's no doubt about it. इसमें से of course it structures the thinking, it builds imagination, it helps to build the imagination, cognitive development होता है. और आपने जो कहा कि जैसे थॉट प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंट टू थॉट प्रोसेस, थोड़ा स्पेस देना है, सब कुछ शॉर्टकट नहीं करना है, इमेजिनेशन को एंकरेज करना है, टाइम, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, एल्डर्स हो, फैसिलिटेटर्स हो, जो भी हो, समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट विल ओवरऑल हेल्प टू डेवलप C9 स्किल्स, जैसे क्रिएटिविटी हो, क्यूरियोसिटी हो, कोलैबोरेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये सब उस प्रकार से डेवलप होंगी ही होंगी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. So I want to thank you all, but in case आपके पास time है and any of the participants would like to ask any question, if the panelists are okay, and if the panelists can give me a thumbs up, and any participants यदि कोई कुछ पूछना चाहेंगे, स्कूल में यदि कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों को लिखाने के लिए, anything that you would like to ask, please feel free to ask. The session is open now for some time. Anyone has any query? आप लोग में से is anyone facing any challenge when it comes to make the students write or make the children write, or is it very easy? Is it a cakewalk? Are all your children happily writing away to glory? किसी के कोई challenges हैं तो please feel free to ask. This is the forum. You can unmute yourself and ask any question that you have to. And anyone has any query? Yes, I have. Sure. Please go ahead. Yeah. Masi from Kalam Trust, Rajni Yadav. चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, बट मतलब थैंक्स है कि आपकी कहानियां जो है ना बच्चों को ट्रैक पे लाने में मुझे बड़ा हेल्प करती है. जैसे आपका अगर हम आम वाला मैं कराती हूँ तो आम में मुझे पता है कि मुझे बच्चों को फलों का एडवांटेजेस बताना है, क्या लाभ है, मतलब वो बहुत बड़ा सेशन बन जाता है. और अगर बस के पहिए तो जब मुझे शेप करानी होती है तो मैं वैसे उसी को निकालती हूँ बस के पहिए, ताकि मैं शेप्स करा सकती हूँ. मतलब मेरा जो आपका कहानियां है मैंने उसका अपना एक टॉपिक लगा रखा है कि अगर ये कराना है तो इसमें मुझे शेप सिखानी है, ये कराना है तो उसपे फलों के नाम बताने, उसका फायदा नुकसान, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, खाएंगे तो क्या होगा. या फिर एक है नन्ही सी जान चींटी, उसमें चींटी के इतने सारे गुण हैं, मतलब उसमें ईमानदारी बोल लो, टीम बिल्डिंग बोल लो, बहुत सारी चीजें उस अंदर कवर कर देती हूँ. और हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, तो एक भीखू की डायरी है आपकी, भीखू की डायरी में तो मतलब मैं हैरान थी, एक बच्चा जो बोल भी नहीं रहा था और बहुत शाई था, उसने भी एक्सपीरियंस बोलना शुरू करा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगाया. वो एक्चुअली अदर लैंग्वेज था, अदर स्टेट का था, तो वो बहुत अकेला था, किसी से नहीं बोलता था. करते करते इस कहानी से मुझे बड़ा फायदा मिला. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि जो बच्चा शांत था, कभी नहीं बात करता था, वो बात करने लगा. और आपको लगता है कि उन लोग राइटिंग में भी दिलचस्पी ले रहे हैं? राइटिंग में जो मेरा प्राइमरी सेशन है उनको जैसे कुछ शब्द निकाल के हम लोग, जैसे मेरा प्राइमरी का तो कोई भी एक मैंने पोएम भी सुनाई बस के पहिए, या एक मेरी गटीला भी सुनाई. तो जैसे मुझे पता है मेरे बच्चों को मुझे आ की मात्रा सिखानी है, या आज मुझे उनको नंबर सिखाने, तो मैं उसको फिर उसमें से निकालती हूँ कि चलो आ की मात्रा के शब्द ढूंढते, चलो चार ही ढूंढते इसमें से, या शन्नों के 100 हाथों. वो तो मैंने कंफर्म उसमें भी यही है कि मुझे उसमें बच्चों को गिनती के ऊपर ही लेकर जाना है. राइट. फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच रजनी जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनपुट. बहुत अच्छा लगा आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए. किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो हमारे पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, नहीं तो हम लोग अभी सेशन को वी आर गोइंग टू वाइंड अप. थैंक यू मैम. मुझे मैं 2 एग्जांपल्स बताती हूँ और उससे रिलेटेड कुछ अगर मुझे सॉल्यूशंस मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी. मैं एक्चुअली लाइब्रेरी एजुकेटर हूँ और मैंने बच्चों के साथ में राइटिंग को लेके भी बहुत काम किया है. अभी फिलहाल मेरा खुद का 7 साल का बच्चा है जिसके साथ मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है जी. और कुछ लास्ट ईयर हमने डायरी लिखने का शुरुआत की थी, बट उसको हर बार बताना पड़ता है, इंसिस्ट करना पड़ता है और वो नहीं चाहता है लिखना. तो फिर कुछ महीने वो करके उसको हमने ये किया कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप देते हैं, बाद में लिखना. तो और उसके बाद में हम लोग कहानी लिखने पे आए. तो वो कहानी लिखता है लेकिन वो चाहता नहीं है कि लिखो, उसे लगता है कि फोर्स किया जाता है. तो उसको कैसे मोटिवेट करे, क्योंकि उसके पास में उसके इतनी सारी कहानियां पढ़ी है. तो कहानी का जो सिंपल स्ट्रक्चर है कि बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, उसमें प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन होता है एंड में,
दैट ऑल दैट स्ट्रक्चर ही नोज, लेकिन उसको लिखना नहीं है। उसकी समझी। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो जी। अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, बट वो पेपर पे नहीं डालता है, तो ये वो वो सेल्फ प्रॉब्लम इंटरेस्ट है। नहीं आ रहा है, राइट राइट, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं ये आ रहा प्रॉब्लम, है। हाँ। जी, तो एक तो ये एब्सोल्युटली। है। जी दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि मेरे पास एक ग्रेड 3 की बच्ची आती है, जी जो लिखने से वो वाकई वाकिफ नहीं थी। मतलब लिखना उसको आता है, डिकोडिंग सब टाइपिंग आता है, बट वो स्किल नहीं था कि कहानी कैसे लिखते। तो उसके साथ मैंने काम किया, उसको कुछ शब्द दिए, पहले कहानी का स्ट्रक्चर वगैरह समझाया, फिर उसको कुछ शब्द दिए और कहानी बुनने के लिए बताया। जी तो उसने कहानी को बीच मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स डाल के छोड़ दिया जिसमें कनेक्शन नहीं था। जी तो मैंने उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए उसके साथ बात की, क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा यहाँ पे क्या हुआ। फिर वो बच्चे ने वो मेंढक को देखा तो उसके मन में कुछ विचार आया होगा क्या, उसने उसको वैसे ही इग्नोर किया क्या और खेलने गया क्या, क्या हुआ होगा। तो फिर उसने मेंढक को, फिर नहीं, मेंढक को देखा, उसने मम्मी को बुलाया, मेंढक को वो घर ले गया, उसको पानी पिलाया, फिर वो सही होके फिर चला गया। तो यहाँ तक कहानी उसने लिखी। फिर मैंने उस पे और सजेशन दिए, तो वो तीसरा ड्राफ्ट वो नहीं लिखना चाह रही थी। तो जी, यहाँ पे मेरे ये है कि वो और अच्छे से लिख सकती है, लेकिन वो नहीं लिखना चाह रही, तो उसे आगे कैसे ले जाए। वेरी वेरी तो नाइस क्वेश्चन। मैं शिव कुमार सर से पूछना चाहूंगी, सर वुड यू लाइक टू टेक अप दीज क्वेश्चंस एंड गाइड? सो या रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बचपन के बारे में कहीं लिखा है, तो उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया था कि वो तो जागीरदार लोग थे, तो टीचर उनको घर पे पढ़ाने आते थे, तो उनको भाषा, गणित ये सब भी पढ़ाने आते थे, साथ साथ में साहित्य, संगीत और चित्रकला ये भी पढ़ाने आते थे। टैगोर ने ये लिखा है कि उनके टीचर जो है, उनको चित्रकला और संगीत जिस तरीके से पढ़ाते थे, उनका क्लास में बैठने का मन नहीं करता था। उनको बहुत ही बोरिंग, निहायत ही फिजूल की एक्टिविटी वो लगती थी, तो वो हमेशा बचते थे संगीत और चित्रकला की क्लास से, बट वो जी गणित और दूसरी चीजें पढ़ते थे। अब इसमें सवाल, और हम जानते हैं कि टैगोर ने अपनी जिंदगी में क्या किया। हम्म इसमें सवाल, मतलब जो शालिनी जी पूछ रही हैं, मेरी पर्सनल राय ये है कि हमें जिस तरीके से अ, मतलब एक ही जनरल ट्रेंड है कि हम गणित से डरते हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं, और उसके कारण भी हमें पता है कि हम क्यों नहीं करना चाहते थे बचपन में। उसी तरह से कहानी है। मैं कह रहा हूँ कि कहानी शिक्षण को भी हमें इतना कठिन और इतना बोझिल नहीं बना देना चाहिए कि वो गणित से भी ज्यादा कठिन लगे। आप अगर बच्चे को पुश करेंगे, वो नहीं करेगा। जितना भी थोड़ी बहुत रुचि है वो भी छोड़ देंगे। जी, बिल्कुल क्योंकि सही। लिखना लिखना देखिए, एक कॉग्निटिव एबिलिटी, हम एडल्ट्स उसको डिफाइन करते हैं, उसको एसेस करते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं लिखना चाहता है, दैट्स फाइन। उसका नेचुरल एस्पेक्ट जो है वो है शेयर करना, बोलना। तो वो जितना ज्यादा अगर हम बच्चा कंफर्टेबल है, दैट्स फाइन। मतलब उसमें क्या इश्यू है? मतलब ये हमारी अपेक्षा है कि वो लिखे ताकि एक फॉर्म में आए और उसका कुछ हो। वाई, मतलब हमें उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें यह है कि अगर वो, जैसा मैडम ने बताया कि बहुत अच्छे शब्द काम में लेते हैं, इमेजिनेशन है, मे भी आप अपने फोन पर रिकॉर्ड करिए और उसको सुनाइए, उसके दोस्तों को सुनाइए, तो दैट एनकरेज जो उनको मिलेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि कहानी पढ़ने की चीज है, तो कहानी उतनी ही ज्यादा सुनने की भी चीज है। सुनते हैं आप किसी और से जब कहानी, सो पर्सनली मुझे बहुत, मैं उपन्यास तक भी सुन सकता हूँ कि कोई आपको सुना रहा है वो चीजें, क्योंकि सुनाने में जो नाटकीयता और जो रोमांच और सुनने के दौरान जो कॉन्वर्जेशन है, वही तो उसका सुख है ना? क्योंकि आप सुनते सुनते बीच में रुक के पूछते हैं, अच्छा ये क्या है, अच्छा मेरे साथ भी हुआ था, तो कहानी के बीच में एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, फिर वो दूसरी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। दैट्स द प्रोसेस। और पढ़ना जो है वो नितांत व्यक्तिगत चीज है। मैं अपने अकेले में पढ़ता हूँ, समूह में नहीं पढ़ता। लेकिन कहानी जब मैं ग्रुप में सुनता हूँ और अपनी दोस्तों के साथ या दोस्तों के बीच में सुनता हूँ, तो एक कलेक्टिव, एक कम्युनिटी एक्टिविटी होती है जो हमें और मजा दे सकती है। दैट्स द दैट्स द थिंग। Beautiful. ओके।
वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली शालिनी जी, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। क्रिएटिव वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी और उसमें हमको मतलब बोला गया था, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में बाद में ये यूज किया गया था, मतलब एक दिया था, एक पेंट का डब्बा और कुत्ता, तो रिलेशन ही नहीं है। आप सोचिए, एक पेंट का डब्बा और कुत्ता, क्या रिलेशन है? इट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट इससे एक छोटी मोटी कुछ राइट अप करके कुछ बनाओ करके बोला गया था, एंड सबने अपना अपना आंसर दिया था। बट अपेरेंटली बाद में एशियन पेंट्स ने इसी चीज को एक पेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया था, कि वो पेंट का डब्बा था और कुत्ता जो है उसके डब्बे पे कूदता है और जो पेंट है पूरे दीवार पे छिड़कता है और घर बहुत सुंदर बन जाता है। तो आप जो कह रहे थे, कनेक्शन ही नहीं रहता है उसके लिखने का, कहीं ना कहीं वो बच्ची बहुत क्रिएटिव है, तो शायद उसकी क्रिएटिविटी को एंकरेज करते हुए जो मिसिंग डॉट्स हैं उसको आप एंकरेज करके, बहुत सुंदर है, ये अलग अलग है, ये अलग है, मे बी वी कैन कनेक्ट, मे बी द वे वी डील इज ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो सर ने भी जो बोला वो पॉइंट्स को आप जहन में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। यदि किसी और को कोई क्वेरी और है तो वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन एंड प्रोसीड। किसी और को कोई और डाउट है, एनीथिंग एल्स? एंड बिफोर ऑफ कोर्स आई कंक्लूड टुडेस सेशन, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आज का जो डिस्कशन था इसमें हमको ऑफ कोर्स वी गॉट टू नो कि ऑल द C9 स्किल्स जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं, जैसे क्रिएटिविटी हुआ, क्यूरियोसिटी हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग हुआ, ये सब हुआ, बच्चे की इमेजिनेशन को इम्प्रूवमेंट करना हो या थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना हो, ये सब के लिए राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई वी आर ऑल गेयरिंग अप फॉर कथा उत्सव 2024। सो हम सारे स्कूल्स एंड बच्चों को इन्वाइट करते हैं टू जॉइन दिस एनरिचिंग जर्नी एंड बिकम पार्ट ऑफ अ लेगेसी। दिस सेलिब्रेट्स क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड ग्रोथ। तो कथा उत्सव जस्ट एक रेगुलर लिटरेरी इवेंट नहीं है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आएंगे। इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट यूनाइट्स यंग वॉइसेस फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही सुनहरा मौका है टू कम टुगेदर, शोकेस लिटरेरी टैलेंट्स, लर्न फ्रॉम सीजन्ड ऑथर्स जो कि नेशनल ऑथर्स भी हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स भी हैं, and develop a lifelong passion for writing. This will surely ensure that children's writing will not become extinct. किसी और को कुछ पूछना हो, anything else that you would like to share? Otherwise, we are going to wind up the session. So, okay. I think किसी और को कुछ नहीं कहना है. A special thanks to Shiv Kumar ji, Seema Sahai ji, Kiran Tiwari ji, AK Tiwari ji, and Bharti ji. It was really wonderful. आपने जो points आज share किए, it's going to go a long way. And क्योंकि ये sessions recorded हैं, हम अपने websites में भी इनको post करेंगे. And we really hope कि आज जो join किए वो तो लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे, और जो नहीं join कर पाए, I'm sure ये recording सुन के it's going to benefit many in the near future. So thank you so much for joining. Absolutely a pleasure to have you all here today. Thank you so much. Thank you so much for having Thanks us. to everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, all of you.